Hi friends, welcome to Unacademy, India's largest online learning app. We provide you support for IIT JEE, then UPSC, MPSC, SSC exams, CBSE classes from 6 to 12 and NEET UG. So enroll with our Unacademy Plus subscription with flat 10% off discount and ace your final exams with Unacademy Plus subscription. So welcome to the class friends. Dear learners, I am Trupti Deshmukh. I have done Masters of Computer Engineering. I am teaching you with the subjects like programming in Python, C, C++, Java, Android application development, C Sharp and ASP.NET. So before moving the forward, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें. So friends, let us start with our new session. Hi friends, welcome to the another session of programming with Python. So today we are going to discuss some of the examples of the Python functions. In last lecture we have seen how the functions are going to be defined, what are the user defined functions, what are the built-in functions, and then how to assign the parameters or arguments, that is how to pass the arguments to the user defined functions also, and how to use the built-in functions also. So today we will see some of the examples of the Python functions, that is Python user defined functions. So let's get started. So I am going to open the online Python compiler. Okay, I am making it full screen and delete the previous code. So हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्रोग्राम यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो कि हम डिफाइन करने वाले हैं, दैट डिस्प्लेज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स एंड n जो है वो क्या करने वाले हैं, हम यूजर से पास करके लेंगे. ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वेयर n इज पास्ड एज एन आर्गुमेंट और पैरामीटर. सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर वैल्यू लेंगे n की और वो क्या करेंगे, हमारे फंक्शन को पास करेंगे. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइनिंग द फंक्शन. सो आई विल राइट द फंक्शन सिंटैक्स हियर, दैट इज डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन. हम लोग लिखते हैं वो, चलिए, दैट इज सम ऑफ नेचुरल्स. ओके, एंड यस हम लोग क्या पास करने वाले हैं, उसको आर्गुमेंट n पास करने वाले हैं. ठीक है, सो सम का लॉजिक लगाते हैं यहाँ पर, दैट इज सम इज इक्वल्स टू 0. सपोज इंस्टेड ऑफ सम आई एम गोइंग टू राइट द ऐड, बिकॉज सम जो है वो क्या है, वो एक पाइथन में ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन है इनसाइड द मैथ. ओके, दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग टू यूज़. अगर यूज़ करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट डोंट यूज़ इट. ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए फॉर लूप लिखेंगे. किसके लिए, कैलकुलेट दी सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स. ओके, सो फॉर आई इन, अब हम लोग क्या करेंगे, उसकी एक रेंज डिफाइन करेंगे. सो इन दैट पर्टिकुलर रेंज वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1, that is sum of first n natural numbers to the up to the n, whatever the n given here, right? For in range, suppose I am going to write like that. Starting हमारी कहाँ से होगी, 1, that is we are going to start with 1 and lastly n plus 1. ठीक है, that is less than n plus 1. That is we are going to start with 0 to the that particular natural number n. Now what I am going to do, sum is equals to sum plus I, right? अभी sum क्या हो गया हमारा, ओके सॉरी नॉट sum, हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, num is equals to number plus I. ठीक है, that is 0 plus 1, then I plus plus, then 0 plus 2 and then what, the next natural numbers addition. So here ये हो गया. अभी हम लोग क्या करते हैं, सिंपली प्रिंट कर लेते हैं, दी सम ऑफ फर्स्ट, कौन से हैं ये, n नेचुरल नंबर्स is
अभी हम लोग क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे। ओके, सो ये हो गया। अभी ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन तो हम लोगों ने देख लिया। आई थिंक वी हैव सीन दिस सेम प्रोग्राम लाइक हाउ टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। अभी हम लोगों को क्या करना है, इसको बाय यूजिंग दी फंक्शन कॉलिंग इसको कॉल देना है। डेफिनेशन हो गई, नाउ वी आर गोइंग टू कॉल इट। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट सम ऑफ naturals and I am going to have the number which is passed as the argument. So number के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर रिपीट नहीं लेते हूँ because you will not have the confusion about it. So I will write like that n1. okay, so अभी यहाँ पर क्या करना है, हमको पास करना है। पर ये जो n नेचुरल नंबर्स है, दैट इज n जो है हमको क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। सो ले लीजिए n1 इज इक्वल्स टू इंट, ये इंटीजर लेना है हमको। फिर हम लोग क्या करेंगे, इनपुट एंटर दी वैल्यू फॉर n to calculate the sum of n natural numbers. Okay, just try to run this now. Okay, just try to run it. Enter the value for n. Suppose I am going to enter the 5. Okay, sum natural is not defined. Here what is error there, you can see here. I have called here sum natural and here I have written sum naturals. That's why it is showing that sum natural is not defined. Okay, just जैसा आपका syntax है आपको वैसा ही लिखना है। Enter the value for n, 5. Yes, the sum of first n natural numbers is 50. Okay, I hope you got this point. Now look here, the name of the definitions or the name of the definitions of the particular functions are case sentences. Likewise, suppose I am going to write like that, sum naturals. देखते क्या होता है, yes, the sum naturals is not defined. Here देखिए ये case sensitive रहते हैं, the name of the function is always case sensitive. यहाँ पर n कैपिटल है और यहाँ पर हम लोगों ने स्मॉल लिया था। सो क्या करेंगे अब हम यहाँ पर naturals and try to run it. Suppose I am going to write like this. Yes, it is running correctly. I hope you understood how to pass the values to the functions. So we will move towards the next program. So in next program we are going to calculate the mean of the floating point numbers or the mean of floating point values which are stored in the lists. Okay, so I will delete this program to calculate mean of floating point values which are stored in the lists, which are stored in the list. We will use the user defined function to calculate the mean of all these things stored in the lists, right? Using user defined functions. Okay, what are we are going to see now are all the user defined functions means what, ये सारे functions जो हैं वो हम खुद define कर रहे हैं, right? So just we will start with the definition for firstly what, the mean. Okay, so mean will be my mean and I am going to pass here what, the list. So the name of list will be my list. देखिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक floating point variables हैं और floating point variables nothing but what, we are going to store the values in that variables and that variables are going to be stored as the lists. So instead of telling or instead of calling them as the floating point variables, we will call it as the floating point values which are going to be stored in our lists. ठीक है, so अब हम लोग क्या करेंगे, the actual calculating the mean of all these values which are present in the list. Now we will write here the actual logic to calculate the mean. Okay, so हमको mean कैसे calculate करते हैं, पहले उसका total निकालते हैं, उसका काउंटर भी बढ़ाना है हमको और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका मीन निकालेंगे. ओके, टोटल इज इक्वल्स टू सपोज आई एम गोइंग टू असाइन द वैल्यू एज 0. देन नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम हैविंग सम काउंटर की वैल्यू होगी यहाँ पर 0, राइट. सो अभी हम लोग क्या करेंगे, फॉर आई इन माई लिस्ट, here I am going to write like this, that is, and here what I am going to do, firstly I am going to add, that is पहले हम लोग उसका टोटल यानी कि सम निकालेंगे और सम निकालने के बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका मीन निकाल सकते हैं. ठीक है, तो फिर टोटल कैसे निकालेंगे हम लोग, टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस आई.
ओके मतलब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, टोटल आई इन माई लिस्ट, इंक्रीमेंट 1 by 1 तो होगा, पर टोटल कैसे करेंगे, वो पर्टिकुलर एलिमेंट प्लस द प्रीवियस टोटल। जैसे कि अभी सपोज फर्स्ट एलिमेंट है 0 plus 10.20, 0 plus 10.20, then the next element is suppose 20 point something, that is 10.20 plus 20.5, likewise we are going to have the addition। और नेक्स्टली हम लोग क्या करेंगे, इसका काउंटर जो है वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ओके, काउंटर इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। okay, so in this way we are going to calculate the total here। now after having the total in my total variable and count is incremented, so here what I am going to do, now I am going to calculate the actual mean। mean कैसे निकालेंगे हम लोग, mean is equals to total divided by count। देखिए यहाँ पर फिर क्या होगा, हमारा टोटल सपोज हमारा आ गया 100 और हमारे सपोज कितने वैल्यूज है 5 है, दैट इज 100 by 5, दैट इज नथिंग बट द मीन ऑफ सम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, राइट। ठीक है, चलो अभी हो गया, लॉजिक तो लिख के हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो फिर करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लिस्ट डिफाइन करते हैं, माई लिस्ट इज इक्वल्स टू, लिस्ट का अपना सिंटैक्स क्या होता है, इफ़ यू रिमेंबर, inside the square brackets we are going to pass the values, right? So here I am going to write like that, 10.2, then 1.4, oops sorry, 1.4, then I am going to write 3.6 and 8.6, likewise I have assigned values। suppose एक और ले ली 9.2। ओके, अभी ये लिस्ट तो हम लोगों ने ले ली। अब ये लिस्ट क्या करेंगे हम लोग, डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन क्या है, माई मीन को ये क्या करेंगे हम लोग डायरेक्टली पास करके लेंगे। तो फिर लीजिए माई मीन माई लिस्ट। ओके, आई विल राइट इन कमेंट, कॉलिंग द फंक्शन एंड दिस वन इज व्हाट, डिफाइनिंग द फंक्शन। ओके हो गया। उसके बाद क्या रह गया हमारा, देखिए हाँ, हम लोगों ने क्या किया है, मीन को प्रिंट ही नहीं किया, तो फिर वो प्रिंट करके लेते हैं। ठीक है, द कैलकुलेटेड मीन इज, देन आई एम गोइंग टू राइट द पर्टिकुलर मीन। ओके, होपफुली द प्रोग्राम विल रन, इफ देर इज एनी प्रॉब्लम देन वी कैन सॉल्व दैट आल्सो। द कैलकुलेटेड मीन इज 6.6, yes it is running correctly। if you have to cross check it, you can cross check using your calculator also। I hope you understood this program, that is how to pass the particular values to the function, that is we can have the different types of arguments to the functions which we have seen in the last lecture also। okay, so after this program we will try to have the most commonly used question in the exam, that is how to calculate the factorial or how to find out the factorial of the given number using the functions। ठीक है, so I will try to clear my shell and read the whole code। now I am going to show you how to program to calculate the factorial of a given number। ठीक है, सो फैक्टोरियल हमको कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन लेके डी, डेफिनेशन ऑफ सपोज फैक्ट। ओके, ये हमारा फैक्टोरियल का जो है फंक्शन रहेगा, एंड हियर आई एम गोइंग टू पास द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ विच फैक्टोरियल वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। सो हियर आई एम गोइंग टू कॉल द नंबर, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। अभी फैक्टोरियल हम लोग 0 को क्यों इनिशियलाइज नहीं कर सकते, देखिए फैक्टोरियल का हमारा लॉजिक क्या करना है, सपोज हमको 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो क्या कैसे करेंगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, राइट। सो अगर हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे तो वो क्या कर देगा 0, और आपका फैक्टोरियल पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ द फैक्टोरियल विद द 0। ओके, हो गया। अभी उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक्चुअल लॉजिक। सो फॉर आई इन हम लोग क्या करेंगे, उसकी रेंज डिफाइन करेंगे। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, नंबर से, स्टार्टिंग विथ नंबर देन एंडिंग विद द 0। अगर 0 आ गया तो अपना क्या होगा, प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। एंड नेक्स्ट
decrementing by 1. Suppose I am going to assign 5, then what I am going to do, 5 into 4, then minus 1, then 5 into 3, then 5 into 2, then 5 and so on. That is 5 into 4 into 3 into 2 into 1. ऐसे हमको हमारा लॉजिक चाहिए, ठीक है. सो ये हो गया. अभी हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल का एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे. ओके, सो फैक्ट इज इक्वल्स टू, एक काम करते हैं, ये फैक्टोरियल का नाम देते हैं और इसका नाम होगा फैक्ट कैलकुलेशन और फैक्ट कैल, ठीक है. क्योंकि प्रोग्राम का नेम यानी कि फंक्शन का नेम और वेरिएबल का नेम सेम हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट विल गेट दी कन्फ्यूजन. इससे हमारे प्रोग्राम में एरर आ सकता है. सो फैक्टोरियल के इज इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल इनटू आई, एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई माइनस माइनस करेंगे, जो कि हम लोगों ने कहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया है, इनसाइड द फॉर लूप. वी हैव डिफाइंड दिस. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डू व्हाट, आफ्टर द फॉर लूप्स is over, that is print the factorial of a number is, हम लोग क्या करते हैं, नंबर num is okay, number num is what, fact, right. ठीक है, अभी ये फैक्टोरियल हम लोगों ने डिफाइन कर लिया. अभी हमको क्या करना है, ये इस फैक्टोरियल के फंक्शन को बाय यूजिंग द मेन प्रोग्राम वी आर गोइंग टू कॉल इट. सो फिर कैसे कॉल करेंगे हम उसको, बाय कॉलिंग द फैक्ट कैल. ओके, सो फैक्ट कैल ऑफ नम, और नंबर जो है हम क्या करेंगे, यूजर से ले लेंगे. नंबर इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द नंबर, राइट, एंटर द नंबर. ओके, देखिए कुछ रह गया है क्या. ओके, जस्ट वी विल ट्राई टू रन इट नाउ. एंटर द नंबर. सपोज आई एम गोइंग टू एंटर 5. यस, द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120. इट इज रनिंग करेक्टली एंड एब्सोल्युटली एज पर आवर रिक्वायरमेंट. नाउ सपोज आई एम गोइंग टू एंटर अनदर वैल्यू. यस, द फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24. 4 into 3 into 2 into 1. Okay, I hope you understood how to use the functions and how to assign the values or how to pass the values to the functions. So we have seen some of the function characteristics, that is function can return the values, function can have multiple values, functions can have the variable length values, and we have also seen the anonymous functions, that is called as the lambdas, using which we can have the calculations in a single line, that is single expression can have the functions calculations also. Now we will see one of the next characteristics, or we can say the feature of the function, that is what, recursion. So first of all we will try to understand what is recursion, and we will try to see its example also. Okay, so we will see firstly what is meant by the Python recursions, function recursions. Okay, now first of all, what is meant by recursions. Suppose the function, that is inside function we are going to write definitions. हम लोगों ने तो definitions लिख ली functions के अंदर, बट अगर फंक्शन अगर खुद को कॉल करे, यस इट इज़ पॉसिबल, दैट इज फंक्शन इज गोइंग टू कॉल इट सेल्फ, दैट इज नथिंग बट द रिकर्शन. वी कैन कॉल इट एज द फंक्शन कॉलिंग इट सेल्फ. दिस इज नथिंग बट द रिकर्शन. सो वो हम लोग बाय यूजिंग वन एग्जाम्पल देखेंगे कि दैट इज हाउ टू यूज द रिकर्शंस इनसाइड द फंक्शन. समटाइम्स इट इज नेसेसरी, दैट इज फंक्शंस कॉलिंग द फंक्शंस इट सेल्फ, देयर सेल्फ. ओके, यहाँ पर हम लोग देखेंगे that is nothing but what, the recursions. So how to use the recursion. अभी recursion हम लोगों को यूज़ कैसे करना है, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये सेम प्रोग्राम जो है फैक्टोरियल का by using recursion देखेंगे. that is recursion, how to use the recursion inside the functions. Okay, I will try to clear the shell and I will read the code also. That is program to calculate factorial of a given number using recursion. Okay, so here what I am going to do, I am going to define fact calculation, right, my same, and I am going to pass its value, that is num, same as before. अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट करेंगे सपोज द फंक्शन रिकर्शन, factorial calculation using recursion, factorial calculation using recursion.
Okay, this is the most common used example in the exams also, that is how to use the recursions in the programs in the Python or in any other language. So at that time we can have the different calculating functions like the recursions. अभी देखिए यहाँ पर लॉजिक कैसे लगाना है. नाउ सपोज इफ नंबर इज इक्वल्स टू 1, अगर आपका नंबर 1 है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली रिटर्न 1 कर देंगे, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही आ जाएगा. ठीक है. एल्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पर हम लोग एक्चुअल रिकर्शन का लॉजिक लगाएंगे. ठीक है. तो फिर मुझे को क्या करना है, ये फैक्टोरियल कैलकुलेशन को कॉल करना है. वो कैसे करना है देखिए. अभी हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, आपको रिटर्न करके देता है एक पर्टिकुलर वैल्यू फ्रॉम दी फंक्शन. वी हैव सीन इन दी लास्ट लेक्चर ऑल्सो. तो रिटर्न हम लोग क्या करेंगे, नंबर इनटू, देखिए यहाँ पर फैक्ट कैलकुलेशन ऑफ क्या है हमारा, नंबर -1. ओके. एंड नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आउटसाइड दी फंक्शन डेफिनेशन, नंबर इज इक्वल्स टू इंट, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इनपुट, एंटर दी नंबर. Okay, and nextly I am going to directly print it. Print the factorial of a number. What is the number? Num. Then is, what I am going to do here now, यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे is, then I am going to call the fact calculation of the number, right? So just firstly try to understand what we have written here. देखिए हम लोगों ने क्या कर दिया, हमेशा की तरह एक नंबर ले लिया यूजर से, और उसके बाद हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर इज व्हाट, फैक्ट कैलकुलेशन ऑफ द नंबर. ये क्योंकि ये क्या करने वाला है हमारे यहाँ पर, इट इज़ गोइंग टू रिटर्न दी सम ऑफ द वैल्यूज, वेदर इट इज़ गोइंग टू रिटर्न 1 और इट इज़ गोइंग टू रिटर्न सम कैलकुलेशंस. ठीक है. अभी नंबर यहाँ पर हम लोगों ने असाइन कर दिया, दैट इज वी हैव पास्ड आर्ग्यूमेंट्स टू माय फंक्शन. सो यहाँ पर ठीक है, फैक्टोरियल कैलकुलेशन यूजिंग रिकर्शन. ओके. इफ नंबर इज इक्वल्स टू 1 देन रिटर्न 1. नाउ द एक्चुअल लॉजिक इज हियर, एल्स रिटर्न नंबर इनटू फैक्टोरियल कैलकुलेशन ऑफ नम -1. नाउ सपोज अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक एक्सप्लेन करके देखते हैं. छोटा सा हम लोग क्या करेंगे, सपोज हमको 3 का फैक्टोरियल निकालना है, दैट इज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ 3. सो पहले हमारा क्या आ गया है 3 इंटू, अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, ये पूरा हम कमेंट में दे देंगे बाद में. ठीक है. फैक्ट कैलकुलेशन ऑफ नम -1. ओके. नंबर -1 मतलब व्हाट, 3 - 1, वो क्या होगा, 2 होगा. ठीक है. अभी इसने क्या कर दिया, ये जो है वो फंक्शन कॉलिंग है, राइट. सो ये फंक्शन कॉलिंग हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर कॉल जाएगा, दैट इज टू दी मेन फंक्शन डेफिनेशन. ठीक है. अभी इसको कॉल चला गया तो ये क्या होगा, 3 इंटू, अभी देखिए यहाँ पर क्या होगा, इफ नंबर इज इक्वल्स टू 1 देन रिटर्न 1. नो, अभी हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न नंबर इंटू फैक्टोरियल कैलकुलेशन ऑफ नम -1. ठीक है. ये नंबर जो है हमने कौन सा पास किया था, 2, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, ये पहले का 3 ऐसा ही, 2 इंटू नम -1. देन व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, नम -1 फैक्ट कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 - 1 दैट इज 1. और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1 है वो फिर से कहाँ पर पास होगा, नंबर को पास होगा, राइट. सो अभी ये नंबर को पास हो गया है. अभी हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू, अभी देखिए हमारा क्या आ गया है, 1 आ गया है, राइट. फैक्टोरियल कैलकुलेशन ऑफ 1. तो फिर 1, इफ नंबर इज इक्वल्स टू 1 देन रिटर्न 1. और ये क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रोग्राम है वो यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, दैट इज रिटर्निंग, इट इज गोइंग टू रिटर्न 1 and it is going to calculate the value of 3 into 2 into 1. So in this way we are going to calculate the factorial of the number. Okay. यहाँ पर मैं और कमेंट में लिख देती हूँ, that is 3 - 1. यहाँ पर क्या हो गया हमारा 2 - 1. And lastly we are going to do the function return, that is return 1. So in this way we can have the factorial calculation using recursions. Okay, I will write it in the comment. And just hopefully the program will run. If there is error we will try to resolve it. Okay, just then try to run it. ठीक है. सपोज मैंने क्या लिख दिया 3. ओके. ये फैक्टोरियल कैलकुलेशन ये कंटिन्यूसली कॉलिंग हो गई, इसके लिए क्या हो गया
रिकर्शन. ठीक है. द फैक्टोरियल ऑफ नंबर 3 इज व्हाट? 6. ओके, दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1 6. अभी हम लोग फिर से करेंगे. अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, एक और चीज़ आपको समझ में आएगा. फॉर नंबर, और नंबर क्या है ये हमारा? नम. ओके, ट्राई टू रन इट. सपोज आई एम गोइंग टू एंटर द वैल्यू 4. देखिए यहाँ पर क्या आता है. देखिए फॉर नंबर 4, पहले 4 असाइन हो गया, उसके बाद 3 असाइन हो गया, उसके बाद 2 और उसके बाद 1. अगर 1 आ गया तो क्या हो गया यहाँ पर? वैल्यू आपकी रिटर्न आ गई. सो इन दिस वे वी कैन ईजिली हैव द एक्सेस टू द function calling, that is nothing but the recursions. So whenever necessary we can use the recursions also to do the calculations inside the functions. Okay, एक लास्ट वैल्यू डाल के देखते हैं 5. देखिए for number 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that is what the factorial of number 5 is 120. और हमने डायरेक्टली कैलकुलेशन का कहाँ पर असाइनमेंट कर दिया? that is function calling factorial calculation of that particular number. So in this way we can have the recursion feature inside our functions. I hope you understood this. Then we will move towards the next point. So before we going forward, just try to understand what are the advantages of the recursion. That is recursion में क्या होता है, हम लोग लॉजिक सिंपल कर सकते हैं, और उसके बाद क्या होता है, जब प्रोग्रामिंग कोड अगर कोई बार बार यूज़ करना है तो हम लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं. बट इसका डिसएडवांटेज जो है, it is taking the lots of memory space as compared to the normal functions, because each time the function is called that particular memory is going to be assigned. अभी देखिए हमने कर यहाँ पर क्या कर दिया, 5 4 3 2 1. सो ये फंक्शन को कितनी बार? 5 बार इसने 5 डिफरेंट टाइम्स इसने मेमोरी ले ली. दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस रिकर्शंस. Okay, so as per the program's requirement you can use the recursions, that is it is having the advantages of having the complex code, making it easy. Okay, now we will see the another program of the functions. Okay, just read the code here, and now I am going to show you the program to calculate the power of a number using user defined function. ठीक है, अभी हम लोग पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं एक पर्टिकुलर नंबर का? उसमें क्या होता है, एक बेस होता है और एक एक्सपोनेंट होता है. सो वी आर गोइंग टू टेक दिस इनपुट्स फ्रॉम द यूजर, एंड दिस इनपुट्स विल बी using the integer numbers. So inputs will be what? Integer, base and what? Exponents, right? ठीक है, तो फिर चलिए हम लोग शुरू करते हैं. सो अभी हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट पावर. ओके, ये है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन. अभी इसको हम लोग क्या वैल्यूज पास करने वाले हैं? एक तो नंबर, दैट इज बेस, एंड देन वॉज उसका पावर, दैट इज इट्स एक्सपोनेंट, राइट? सो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पावर. ओके, चलिए अभी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इनसाइड दिस फंक्शन वी हैव टू जस्ट राइट द लॉजिक फॉर द कैलकुलेटिंग द बेस टू द बेस रेस टू एक्सपोनेंट्स. तो फिर लिखते हैं. सो इसके लिए हमको कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? फर्स्टली एक रिजल्ट लेते हैं हम वेरिएबल, और उस रिजल्ट में हम नंबर टू द पावर ये कैलकुलेशन करेंगे. ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप लेंगे फॉर आई इन रेंज, राइट? सो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, आई कोमा, अभी यहाँ पर पावर प्लस 1. देखिए ये क्यों लिखते हैं हम लोग? दैट इज द पावर ऑफ द पर्टिकुलर नंबर विल बी पावर प्लस 1. अगर समझो हमारी पावर 4 है तो इट इज गोइंग टू स्टार्ट विद द 1 2 3 प्लस 4, दैट इज व्हाट द पावर प्लस 1. और यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया, आई, नॉट आई, here I am going to start my i's range with 1, that is 1 to the power plus 1. So next what I am going to do, I am actually going to apply the logic, that is result is equals to, हम लोग अभी यहाँ पर क्या करेंगे, result into number. ओके, कहाँ तक? जब तक हमारी पावर है, that is, and I am going to return my result. Okay, so now what I am going to do, I am going to take values from the user.
ओके, यूज़र से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इनपुट्स ले लेंगे। तो फिर पहला हमारा क्या होगा, बेस इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर ले लेंगे, एंटर दी बेस फॉर नंबर। ओके, नेक्स्ट हम लोग दे लेंगे एक्सपोनेंट, राइट, एंटर दी एक्सपोनेंट फॉर पावर। ओके, यूजर से 2 इनपुट्स ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। अभी उसके बाद हम लोग को क्या करना है, एक्चुअल फंक्शन कॉल करना है, और उसके वैल्यू जो है वो क्या करने वाले हैं, हम लोग एक पर्टिकुलर वेरिएबल में सेव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया है, वी आर गोइंग टू रिटर्न द रिजल्ट हियर, राइट। सो व्हाट इज माय फंक्शन, दैट इज कैलकुलेट पावर, राइट, and the number is, which is what, number is base and exponent is power, that is exponent, and lastly I am going to print the, अभी हम लोग क्या करेंगे, the base, उसका क्या है, base raised to the power, then I am going to write power क्या क्या है यहाँ पर हमारा, exponent is what, answer, right. Okay, just we will try to run it and just try to find out if there is any error. Okay, clear the shell and try to run the program. Okay, there is some error here, what, enter the base for the number. Okay, क्या है यहाँ पर एरर, देखिए। ओके, सब तो करेक्ट है। अच्छा, अरे हमने यहाँ पर इनपुट नहीं लिया है, सॉरी, वी हैव नॉट टेकन द इनपुट हियर, बिकॉज यूजर से इनपुट लिखना लेना है हमको, राइट। सो आई विल टेक लाइक दिस, int input. Okay, now just try to clear the shell and try to rerun it. Okay, enter the base for the number, suppose 3 to the power, suppose 2. Yes, the base 3 raised to the power 2 is what, 9. Yes, it is running correctly and as per our expectations. Just we will try to rerun it. 4 to the power, oops, sorry, suppose I am going to write 3. Yes, the base 4 raised to the power 3 is 64. Yes, it is running as per our expectation. Now suppose I am going to write like that, 5 to the power 4. Okay, that is 625, that is 625. Yes, it is running correctly and as per our expectations. I hope you understood all this point, that is how to use the functions, then how to use the recursions also. अभी नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग क्या देखेंगे, जस्ट कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एंड वी आर गोइंग टू हाउ, दैट इज वी आर गोइंग टू रिटर्न द वैल्यूज इन द सिंगल स्टेटमेंट इटसेल्फ एंड यूजिंग द डिफरेंट वेरिएबल्स। सो देखते हैं हम लोग को कैसे करना है। सो जस्ट आई विल ट्राई टू एरेज द कोड आल्सो। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, द प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया comma perimeter of the rectangle using user defined function. Okay, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, we will try to write firstly what, calculate area and perimeter, area and peri, this will be my function। और हम लोग इसको क्या करेंगे, एरिया एंड पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, लेंथ एंड व्हाट वी आर गोइंग टू हैव द ब्रेड्थ, राइट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया। ओके, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट, हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू, क्या है इसका फॉर्मूला, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, राइट, ठीक है, हो गया। अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू हैव द 2 डिफरेंट रिजल्ट्स इनसाइड द सेम स्टेटमेंट। एक सेम स्टेटमेंट में हम लोग 2 डिफरेंट रिजल्ट्स देंगे, तो वो कैसे लेने हैं वो देखते हैं। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न, ये क्या करेंगे हम लोग, एरिया
and perimeter, right? Now here you can see that inside the parenthesis we are going to return these two. Okay, यहाँ पर spelling mistake हो गई है, perimeter. These two results. If you understand and if you remember, अगर आप लोगों को याद है कि ये हम लोगों ने पहले कहाँ पर यूज़ किया था, so the tuples are going to be used here, right? What it is going to do, it is going to convert these two results into the tuples, because tuples जो है हमेशा क्या होते हैं, parenthesis के अंदर होते हैं. तो यहाँ पर हम लोग लेते थे tuples are returned as a result, or we can say that as a common result. ठीक है, तो फिर ये हो गया. अब हम लोग क्या करेंगे, we are going to have firstly the inputs. हम लोग लेते हैं float. इनपुट क्या रहेगा इसका, एंटर द लेंथ. लेंथ एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट एंटर द ब्रेथ्स. ये दोनों ले लिया. अभी हम लोगों को क्या करना है, इन दो इनपुट्स को हम लोगों को जो मेन फंक्शन है हमारा कैलकुलेशन का, दैट इज कैलकुलेट एरिया, कैल एरिया पेरीमीटर, उसको असाइन कर देंगे. ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया कोमा पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, अभी देखिए हम लोग यहाँ पर कैसे असाइन करते हैं, कैलकुलेट एरिया एंड व्हाट्स इज नेम, पे, राइट? एंड आई एम गोइंग टू पास वैल्यूज लेंथ एंड ब्रेथ. अभी देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये दो टपल्स है. ठीक है, ये एरिया और ये पेरीमीटर में हम लोग क्या रिटर्न करने वाले हैं, दिस एरिया एंड पेरीमीटर है. सो जैसा आपका सीक्वेंस रहेगा कॉलिंग का, वैसे आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, रिटर्निंग द रिजल्ट्स. अदरवाइज एरिया जाएगा पेरीमीटर में और पेरीमीटर जाएगा एरिया में. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट आई एम गोइंग टू डू, फर्स्टली आई विल राइट हियर कमेंट, टपल्स आर असाइन्ड in order which they are used or they are going to give the results. ओके, ठीक है, ये हो गया. अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट. अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट व्हाट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, एंड देन आई एम गोइंग टू राइट एरिया. देन नेक्स्ट वन वाज the perimeter of the rectangle is, and next I am going to write what is this, perimeter, right? Okay, I hope you understood this. So we will try to run it, and if there is any error we will try to resolve this also. Okay, enter the length 10 and enter the breadth 20. Okay, that is 10 into 20, that is area of rectangle 200, and 10 into 20 into what, the next one is what, no, 10 plus 20 into 2, that is 60, which is what the perimeter of the rectangle. Okay, it is running absolutely and as per our expectations. Just a minute, we will try to have some another inputs also. 12.5 and 3.6. Okay, the area of rectangle is what, 12.5 into 3.6, that is 40.0, and the perimeter is 32.2. Okay, so in this way we can have the tuples as an arguments to our functions also. The same way we can have the strings also, which we have seen in the last lecture also. I hope you understood this point, that is how to calculate the particular area and perimeter of the circle, of the rectangle using the user defined functions. And here we are going to pass the tuples as the results. Okay, so in the single line you are going to return the two different values, that is first one is area and second one is perimeter. So next point which we are going to discuss is modules, that is modules in the Python. Okay, so we will see that also, what is modules. So in last lecture we have seen
Modules are nothing but the collection of different functions, and we can have some of the user defined modules also and inbuilt modules also. कल हम लोगों ने लिस्ट देखी थी मॉड्यूल्स की कुछ, दैट इज जैसे कि इंपोर्ट मैथ, देन स्टैटिस्टिक्स एंड रैंडम. ओके, सो ये जो है वो पूरे के पूरे इनबिल्ट मॉड्यूल्स है विच आर अवेलेबल इनसाइड द पाइथन. अभी हम लोग क्या देखते हैं वो एक्चुअल यूज़ कैसे करेंगे. ठीक है, कौन कौन से हम लोगों ने देखे थे जो इनबिल्ट थे वो मैथ, देन व्हाट वाज देयर, आई थिंक स्टैटिस्टिक्स वाज देयर, statistics and random was there. Okay, so I will clear the shell and clear the output also. देखिए, अगर आपको कोई मॉडल में कौन से फंक्शन है वो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथन का हेल्प डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपको ज़रूर बताएगा. देखिए, सपोज आई एम गोइंग टू राइट हेल्प मैथ. देखिए ये क्या बताएगा, हेल्प ऑन बिल्ट इन मॉड्यूल मैथ. सो ये क्या बताएगा, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन, दैट इज मैथ, दैट इज दिस मॉड्यूल प्रोवाइड्स एक्सेस टू द डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शंस डिफाइंड बाय द सी स्टैंडर्ड्स. सो कौन कौन से फंक्शंस है उसकी वो क्या करेगा, लिस्ट पे देगा. ओके, सो लाइकवाइज सपोज आई एम गोइंग टू हैव द रैंडम, व्हाट आई विल शो, रैंडम वेरिएबल्स जनरेशन. ओके, सो देखिए दे देगा आपको क्या करता है वो, रैंडम इंटीजर्स दे देता है और रैंडम सीक्वेंसेस भी देता है. एंड देन इन केस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स वी कैन हैव दिस, that is it is going to have the statistics, that is calculating the generally averages, that is variances and standard deviation, mean, median and mode. Okay, so just we will see simple examples of how to use these modules. देखिए अभी हम लोग क्या करते हैं, import random, right, and I am going to directly calculate the function random for having one random value. ओके, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, द मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल. सो इट मीन्स व्हाट, वी कैन नॉट डायरेक्टली यूज द फंक्शन रैंडम. देखिए रैंडम जो है वो क्या है, दिस इज मॉड्यूल एंड दिस इज द फंक्शन इनसाइड मॉड्यूल, राइट. अभी अगर हम लोगों को ये रैंडम यूज़ करना है, हम लोगों ने देखा है कि मैथ का पावर फंक्शन जो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते थे, उसके लिए क्या करना पड़ता था हमको, मैथ डॉट पावर. सो वैसे ही हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रैंडम डॉट रैंडम. ओके, जस्ट ट्राई टू रन इट. यस, एंड इट इज गोइंग टू जनरेट वन रैंडम नंबर. देखिए रैंडम क्या करता है, ईच टाइम यू आर गोइंग टू हैव सम इंटीजर, दैट इज इंटीजर बट व्हाट, पॉजिटिव नंबर्स इन द फ्लोट फॉर्मेट. ओके, ये इंटीजर नंबर आपको नहीं देगा यहाँ पर, क्योंकि ये क्या करेगा, लेस देन वन. यहाँ पर हमेशा देखिए लेस देन वन देगा. अगर आपको इससे ज़्यादा लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रैंडम रेंज का एक फंक्शन है, दैट इज रैंड रेंज. आई थिंक वी हैव सीन सम ऑफ द थियरी रिगार्डिंग इट इन द लास्ट लेक्चर, तो वी हैव टू डिफाइन दैट फॉर दैट. ओके, अगर हम लोगों को क्या करना है, ये जो रैंडम फंक्शन है इसको बार बार हमको क्या करना है, रैंडम मॉड्यूल से नहीं एक्सपोर्ट करके लेना है नहीं, और इसको इंपोर्ट भी हमको ये इस फंक्शन से डायरेक्टली मॉड्यूल से नहीं करना है. तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आई विल राइट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस इंपोर्ट रैंडम की जगह हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम रैंडम, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इंपोर्ट रैंडम. ठीक है, सो अभी देखते हैं रन होता है क्या. यस, इट इज़ रनिंग करेक्टली. सो इसका मीनिंग क्या है, देखिए फ्रॉम जो स्टेटमेंट है वो हम लोग कब यूज़ कर सकते हैं, अगर पर्टिकुलर एक मॉड्यूल है और उस मॉड्यूल का एक पर्टिकुलर फंक्शन हमको यूज़ करना है. सो एट दैट टाइम वी हैव टू यूज़ दिस फ्रॉम स्टेटमेंट हियर. ओके, सो दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग टू राइट हियर दी रैंडम इनसाइड द प्रिंट फंक्शन. अभी हम लोग ऐसे नहीं लिखने वाले, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है डबल लिखने की. ठीक है, ये क्या करता है, बिल्ट इन फंक्शन और मेजर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट रैंडम, क्योंकि हम लोगों ने क्या इंपोर्ट किया है, रैंडम मॉड्यूल के अंदर की जो रैंडम मेथड है, इट इज रैंडम फंक्शन विच दैट वी आर गोइंग टू यूज हियर. ओके, जस्ट ट्राई टू रन इट अगेन. यस, इट इज गोइंग टू शो द करेक्ट आउटपुट. अभी वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, एक मैथ का जो मॉड्यूल है वो यूज़ करके देखेंगे. मैथ का हम लोगों ने पहले भी यूज़ किया था, अभी भी यूज़ करके देखेंगे. अभी हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट हम लोग करेंगे सेल एंड SQRT. ओके, अभी यहाँ पर हम लोगों ने इंपोर्ट करके ले लिया, तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, एक्चुअल लॉजिक डिफाइन करना है, तो फिर वो करके लेते हैं. अभी हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू इज इक्वल्स टू
sale of one particular value, that is 624.7. suppose I am going, or 623.7 I am going to write, and then next हम लोग क्या करेंगे, उसका value, and lastly I am going to print that particular value here. Okay, print sqrt of the value, clear the shell and try to run it. as 24.97. अगर हम लोगों को ऐसे डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है तो हमको कैसे करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अभी डायरेक्टली रन करके देखते हैं. क्या, सेल इज नॉट डिफाइंड बिकॉज इट इज़ व्हाट, इनबिल्ट मैथमेटिकल मॉड्यूल्स फंक्शन. ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इम्पोर्ट मैथ्स. अभी यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैथ डॉट सेल, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैथ डॉट एसक्यूआरटी. दोनों का मतलब सेम ही रहेगा. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट. अगर हम लोगों को डायरेक्टली मैथ फंक्शंस यूज़ करने हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस ईच एंड एवरी लाइन, सो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट सेल एंड एसक्यूआरटी. नाउ सपोज हम लोग एक सिंपल प्रोग्राम देखेंगे. आई विल ट्राई टू क्लियर द शेल एंड यूजिंग द math function. Okay, from math I am going to import like the sqrt right here. Cell is not required. अभी हम लोग क्या करेंगे, यूजर से एक इनपुट लेंगे. a is equals to, suppose I am going to write int input, what I am going to write here, enter the number. Okay, and next what I am going to do, I am actually going to do the calculations here. Print the square root of whatever the number is here. A is, what's the value here, now I am going to directly use. अभी मैथ डॉट एसक्यूआरटी हमें यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है. हम लोग क्या करेंगे, एसक्यूआरटी ऑफ ए. ओके, ओके, द स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2.0. then square root of 25 is 5.0. so in this way we can easily have the access to the different modules and their functions. ठीक है, ये जो है ये क्या है, पूरे के पूरे इनबिल्ट मॉड्यूल्स है, बट वी कैन राइट अवर ओन मॉड्यूल्स ऑल्सो. सो उसके लिए हम लोग देखते हैं वो कैसे करना है. सो अभी ये जो कंपाइलर मैंने यूज़ किया था, यहाँ पर वी कैन हैव दी सिंगल फाइल इटसेल्फ, बट हम लोगों को क्या करना है, अभी एक मॉड्यूल डिफाइन करना है और उसको क्या करना है, दूसरी फाइल में ट्रांसफर करके लेना है या फिर इंपोर्ट करके लेना है. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आई एम गोइंग टू सर्च द ऑनलाइन पाइथन एडिटर यूजिंग द मल्टी फाइल. सो उसमें पहला आ गया जो pezzo.io. सो आई एम गोइंग टू यूज दैट हियर. ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू कोड. और यहाँ पर हम लोग देंगे, वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द पाइथन 3 दैट इज लेटेस्ट वर्जन. ओके, आई विल क्लोज दिस. ओके, मेन डॉट पाई में हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करके लेंगे हमारा जो पाइथन का इनबिल्ट और यूजर डिफाइंड मॉड्यूल है. अभी हम लोग यहाँ पर यूजर डिफाइंड ले लें तो फिर वो लेते हैं. अभी हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल कैलकुलेटर करेंगे और उसका क्या करेंगे, हम लोग उस मॉड्यूल को ये मेन फाइल में हम लोग इंपोर्ट करके लेंगे. ठीक है, सो आई विल फर्स्टली एडिट इट्स नेम. अब हम लोग इसको देंगे नाम बेसिक मैथ डॉट पाई. ओके, दिस इज माई module to write the logic here. okay, ओके, अब मैंने अभी इसको जूम करके ले लिया. अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे. पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐड नंबर. ओके, ऐड नंबर में हमने दो वैल्यूज ले लिए, x, y, एंड देन आई एम गोइंग टू रिटर्न व्हाट, x plus y. okay, then I am going to write definition of subtract num x, y, and I am going to write return x minus y. okay, the next thing I am going to write definition of multiplication of numbers x into y, and then I am going to write, oh sorry, यहाँ पर हम लोग लॉजिक नहीं लिख रहे हैं, लॉजिक यहाँ पर नीचे लिखना है. then return what I am going to write here, x into y. ओके, ये हो गया.
अभी हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन ऑफ कौन सा रह गया, डिवीजन। अभी देखिए डिवीजन में क्या होता है, डिवाइड बाय जीरो एरर भी आ सकता है, तो उसमें क्या होता है, इनफाइनाइट लूप में चला जाता है। तो फिर हम लोग यहाँ पर उसके लिए लॉजिक लिखेंगे पहले, डिवाइड बाय जीरो एरर इज देयर इफ, अभी हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू जीरो, देन आई एम गोइंग टू जनरेट व्हाट, प्रिंट डिवाइड बाय जीरो एरर। ओके, देन अभी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एल्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, रिटर्न द एक्चुअल डिवीजन, रिटर्न x डिवाइडेड बाय y। ओके, ये हो गया हमारी मॉड्यूल के डेफिनेशन। द नेम ऑफ माई मॉड्यूल इज बेसिक मैथ डॉट पाई, और ये हम लोग कहाँ पर इंपोर्ट करके लेने वाले हैं, या हमारे दूसरे प्रोग्राम में। ओके, हम लोगों ने अब तक दूसरा प्रोग्राम नहीं लिखा है, एक बार फिर से हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। एक फंक्शन लिया है फॉर एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, so now what I am going to do, I am going to have the main function here, and I am going to import here directly what, basic math, और यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, हम लोग यहाँ से यूजर्स की डायरेक्टली वैल्यूज पास कर देंगे। ठीक है, वो वैल्यू क्या कहाँ पर होगी, रिटर्न, देखिए यहाँ पर एक रिटर्न स्टेटमेंट है, सो हमें क्या करना है, उसको एक पर्टिकुलर वेरिएबल में रिटर्न करके देना है। सो आई विल डायरेक्टली असाइन द वैल्यू। अभी हमको क्या करना है, बेसिक मैथ डॉट एडनम। ओके, एडनम ही देखिए है ना, देखिए वहाँ पर फंक्शन का नेम, यस। ओके, आई विल असाइन वैल्यू 10 and 20, 10 and next one is 20. Okay, and next what I am going to do, print addition is, then I am going to print the a. Okay, just try to run it. देखिए यहाँ पर आ गया हमारा आउटपुट, एडिशन इज, इफ यू कैन सी हियर, एडिशन इज 30. सो इन द सेम वे आई एम गोइंग टू यूज द रिमेनिंग बेसिक मैथ मॉड्यूल्स आल्सो। ओके, ये हो गया एडनम। अभी ये हो गया है सब्सट्रैक्ट, यहाँ पर हो गया हमारा बी। सब्ट्रैक्शन इज, then next I am going to write C. Subtraction के बाद क्या रह गया, multiplication, right? Multiplication is, and I think its name is mul. Now, okay, and the next variable is what, C. Then last one I am going to print is the division. D is equals to, okay, basic math, and here is what, division. Division is, and I am going to print the output. Okay, hopefully it will run. देखिए यहाँ पर क्या आ गया, addition is 30, subtraction is what, next one is minus 10, because 10 minus 20 is there, that's why minus 10. Then multiplication is 200, and division is, here division का क्या आ रहा है, error. ओके, हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर डिवीजन का एरर क्यों आ रहा है यहाँ पर 30, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, एडिशन की कैलकुलेशन एज इट इज़ रख दी, यहाँ पर एडनम लिख दिया हमने, डिवीजन लिखना था, आई थिंक इट्स डिवीजन, जस्ट वी विल क्रॉस चेक अगेन, यस, डिवीजन ऑफ नम. ओके, देन रीरन एंड लेट्स हैव द आउटपुट. यू कैन सी हियर 30 minus 10, 200 and 0.5. ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर वैल्यू देखते हैं यहाँ पर, 10 is going to be converted to 100. ओके, 10 into 10, 20, नो प्रॉब्लम. अभी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय जीरो एरर देखते हैं कि वो रन होता है भी या नहीं. सो जस्ट ट्राई टू रन इट. देखिए अभी यहाँ पर क्या आ रहा है, addition is 30, subtraction is 80, multiplication is 200, and divide by 0 error. That's why our division is what, none, that is nothing, because what, the divide by 0 is there. Okay, so in this way we can have
the user defined modules also, and we can use them as per our program's requirements, or whenever we are going to write the different projects, so at that time we can have these modules also, that is user defined modules also. So friends, that's all for today. We will meet in the next section. Till then, bye. So friends, at the end of the session, let me tell you about the Unacademy Plus and Iconic subscriptions. So let me tell you first about the Plus subscription. That is, we are going to provide you the basic plan to get you started, and its advanced version is what? Iconic. Okay, just let me tell you about what is the Plus subscription. We are having the India's best educators, the interactive live classes, live tests and quizzes also. Obviously, we are going to provide you notes using the structured courses and PDFs also. So, as per the name, the Iconic is the advanced version of the Plus. So, here what you are going to do, you are going to take your CBSE preparation to the next level, and with the most benefit of personal mentors. Yes, absolutely right. You are going to have the personal mentors here using the laid out solutions, then parent connection and study planner. Okay, it is having the same sum of the quantities or characteristics of Plus, that is India's best educators are there, then interactive live classes, live tests and quizzes also. So we are having the mega launch Mondays also, in which we are going to start the new batches to master maths, science, SST, English and Hindi full syllabus. So this is for the CBSE class 10, which is called as the mission half yearly, in which you are going to have SST, that is social sciences, then maths, science and English with top educators. And for class 9, we can solve the numericals and NCERT exercises with the maths and science subjects. So we are having the Unacademy batches also, that is we are having the new batches every Monday. For the CBSE class 9 we are having the Summer Express batch. इसमें क्या है, हम लोगों को समर एक्सप्रेस बैच में मैथ्स है और साइंस है, और इसकी जो स्टार्ट डेट है वो है 7th June 2021 and end date is 7 July 2021. So to subscribe for class 9 and get the class 10th, 11th and 12th subscription totally free. So let me elaborate about the our Plus subscriptions and Iconic subscriptions. So friends, here you can see that for class 9 subscription we are having two, that is Iconic and Plus subscriptions. Now in under the Plus subscription you must choose for the 12 months subscription, that is for rupees 15,000, and for 36 months you can have the plan of 32,000. And if you go for the Iconic subscription, you can have the 12 months plan for 28,000 and 36 months plan for 66,000. ओके, दिस इज़ अबाउट द क्लास 9. अगर आप लोग क्या करोगे, क्लास 9 का जो सब्सक्रिप्शन लोगे उसको आपके लिए क्या बेनिफिट रहेगा, आपको क्लास 10th, 11th और 12th का भी रहेगा. सो नाउ सेम इन द केस ऑफ क्लास 10th. ओके, अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए क्लास 10 के सब्सक्रिप्शन को यहाँ पर क्या है, प्लस सब्सक्रिप्शन भी है और उसके साथ क्या है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है. सो अगर आप लोग क्या करते हो, क्लास 10 का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको उसके साथ क्या मिलता है, 11th और 12th का भी सब्सक्रिप्शन मिल जाता है. सो इसके लिए भी हमारे पास क्या है, 3 months, 6 months, 12 months, 15 months, 18, 24 एंड 36 months. अगर आप 12 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए जाएंगे तो आपके लिए क्या रहेगा, रुपीज़ 15,000 का रहेगा सब्सक्रिप्शन. अगर आप 36 मंथ के लिए जाओगे तो आपके लिए क्या रहेगा, 32,000 का सब्सक्रिप्शन रहेगा प्राइस. सो नाउ इन द केस ऑफ आइकॉनिक, सो 12 मंथ्स का आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो रहेगा 28,000 एंड 36 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपका रहेगा 66,000. ओके, सो एज आई हैव सेड द प्लस का एडवांस वर्जन जो है वो हमारा क्या है, आइकॉनिक है. So friends, let me tell you about the Unacademy Emerge. So it is what India's largest free aptitude test for class 6 to 12th.
and the test date and time are 28th June 12 pm. So there is part case. So students, you can start the registrations for the same. So what is actually the Unacademy Emerge? So इसमें आपके लिए क्या रहेगा, 30 एप्टीट्यूड क्वेश्चंस रहेंगे, देन उसमें रहेगा आपके लिए 60 मिनट्स का चैलेंज. 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास कितने हैं, 60 मिनट्स है टोटली. एंड यस, एब्सोल्युटली नो प्रिपरेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस. एंड अगर आप लोग ये अटेम्प्ट करते हैं और प्राइज जीतते हैं तो उस वो रहेगा प्राइज वर्थ ऑफ 5 crores. सो दैट किस बात के स्टूडेंट्स, just enroll to the Unacademy Emerge and attempt for the aptitude exam. So to win the 5 crores scholarships also available for that. Win scholarships and mega prizes like MacBook, iPhone, iPads, exciting goodies, certificate, trophies and much more worth Indian rupees 5 crore. Yes, absolutely correct. So friends, just start to enroll now for this our Unacademy aptitude test. Okay, in this you are going to have the 7 lucky winners in which you are going to win the exciting goodies every day, and this offer is valid till the date of the 7 June only. So enroll now, and yes, लिंक जो है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दी है. सो प्लीज़ वहाँ पर जाए, लिंक को क्लिक करें और आप एनरोल करना ना भूलें. इट विल बी हैविंग द फन फॉर यू, दैट इज हैविंग द एप्टीट्यूड टेस्ट विथ नो प्रिपरेशन एट ऑल. So for our Unacademy Plus and Iconic subscriptions, there is 10% discount if you use this code. That is, my code is TD Live. So if you use this, you are going to have the 10% discount on Unacademy Plus and Iconic subscription. Okay, and to download the app, Unacademy app, now you can go on to the Google Play Store, and if you are having iPhones, you can go to the Apple Play Store and download the app and install it. Then you can have all of these features for free. And yes, obviously to have the Plus subscription, you can also have the subscription with the flat 10% discount with my code here, as I have entered here. So that is but case friends, let's do it and let's crack it. Okay, so thank you for today's session. Okay, thank you students. We will meet in the next session. Till then, bye.